Today we are going to start first chapter of class 11th mathematics, that is sets. In this chapter we will read about the sets. We start with the definition. What is a set? In our daily life we often use the word set, the collection of objects. For example, dinner set, tea set, sofa set, the set of books, and you can make the collection of objects, different type of objects, that is known as set. For example, when I write the vowels of English alphabet A, E, I, O, U, inside this bracket, curly braces, and this is denoted by A, capital A. So sets are denoted by capital A, B, by English alphabets, and A, E, I, O, U is a collection, but this collection is well defined collection. So what is a set? Set is a collection of well defined objects, the collection of well defined objects. The term well defined, this is very important. What is the meaning of the word, the term well defined? Well defined का मतलब क्या होता है? We must be clear about the inclusion of objects in the set. For example, when I write few elements inside the curly braces 1, 2, 3, 4, then this set is having 4 elements and these are known as elements. जो भी आप अंदर लिखते हैं ये सब क्या हैं? These are elements. For example, 1 is an element of set B, 2 is an element of set B. This chapter, the concept is the fundamental concept of mathematics. One of the fundamental concept of mathematics. This is when you write 1 belongs to set A, this is the sign of belongs to. This is the sign of belongs to. Belongs to, you can say, is an element of, or you can say का अवयव है. In Hindi we used to say अवयव, इसका एक एलिमेंट है, इसका एक पार्ट है. I belong to चित्तौड़गढ़, I belong to Rajasthan. Okay, so this element belongs to set A, or you can write 3 belongs to set B or not. Sorry, 1 belongs to set B. 3 belongs to set B or not. Yes, it belongs to the set B. जब आपसे पूछा जाता है 5 belongs to set B or not, तो no, 5 does not belongs to the set B. 5 B सेट का एलिमेंट नहीं है. तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन किसका मेंबर है. तो द एलिमेंट मीन्स द जस्ट लाइक द मेंबर. फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू मेक ए सेट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम, तो प्लेइंग 11, तो यू कैन मेक ए सेट ऑफ द प्लेइंग 11. यू कैन राइट द नेम्स ऑफ द प्लेयर सेपरेटिंग बाय द साइन कॉमा, in which you can make a list of the elements, you can make the list of the students they are reading in your class. आपकी क्लास के बच्चों का एक कलेक्शन बना सकते हैं, उसको कोमा लगा करके सेपरेट कर सकते हैं, तो that is also well defined collection. हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, I am making a set of the letters of the word pearl. I am making the set of the letters of the word pearl. The set will be P, E, A, R, L. P, E, A, R, L. Now I am making the set of the word parallel. तो जब भी आप सेट बनाते हैं, आप किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते.
यू कैन नॉट राइट एन एलिमेंट 2 टाइम्स, 2 बार आप किसी भी एलिमेंट को स्थान नहीं दे सकते हैं। तो यहां जो सेट बनने वाला है वो बनेगा PARLE। और आप देखिए कि दोनों जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स में कॉमन लेटर्स हैं, दोनों सेट्स इक्वल आए हैं, जबकि दोनों वर्ड क्या हैं, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो ये जानना आपको जरूरी है कि किसी भी सेट को बनाते समय उसके एलिमेंट को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, यू कैन चेंज द प्लेस, ए यहां लिखा है, पी यहां लिखा है, ए यहां लिखा है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो सेट की डेफिनेशन को आप समझें। कुछ सेट और आपसे मैं पूछ लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि आप सेट कैसे बना सकते हैं। Can you make a set of difficult questions of your books, of your book mathematics? आप मैथ्स की बुक के डिफिकल्ट क्वेश्चंस का सेट बना सकते हैं। कैन यू मेक द सेट ऑफ मोस्ट 5 डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड? तो सबके लिए डेंजरस की डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक है, तो आप इस तरह के सेट नहीं बना सकते। कैन यू मेक द सेट ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ योर सिटी, है ना, तो ऐसा सेट आप नहीं बना सकते। इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ये नहीं बना सकते। तो कौन से सेट हम बना सकते हैं? यू कैन मेक द सेट ऑफ, जिसमें क्या हो, वेल डिफाइन हो, कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ ए ईयर विच स्टार्ट विद द लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से हैं? यस, जनवरी, जून एंड जुलाई। ये एक सेट आप बना सकते हैं। इसी तरह से और द डेज इन ए वीक, यू कैन राइट ऑल द डेज, संडे टू सैटरडे, उसका एक कलेक्शन आप बना सकते हैं। यू कैन मेक द सेट ऑफ, बनाना एक सेट में बोलता हूं आपको, इवन प्राइम नंबर, द सेट कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर। कैन यू मेक द सेट? यू डोंट नो इवन प्राइम, there is only one number that is even and prime, and that is right 2। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये एक सेट बन गया, है ना। वेल डिफाइंड होना चाहिए। द नेम्स ऑफ द रिवर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं उन सब का हम सेट बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं भाई, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आपकी क्लास के बच्चों का सेट बना सकते हो, आपकी किसी शेल्फ में बुक्स रखी हुई है, you can make a set. You have to write elements inside the bracket. This bracket में लिखना, इसमें किसमें, कर्ली ब्रेसेस में लिखना, एंड उसके क्या लगाना, कोमा लगाना है और साथ में सेट लिखना। आप इजीली बना लेंगे, है ना। लेकिन कलेक्शन वेल डिफाइन होना चाहिए। कलेक्शन और सेट में डिफरेंस है। एवरी सेट इज ए कलेक्शन, बट यस, एवरी कलेक्शन इज नॉट ए सेट। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में जाएगा, है ना, एक स्किल दूसरे में ट्रांसफर होती है। तो ये चैप्टर जाएगा रिलेशन फंक्शन में, और वहाँ ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा, क्योंकि रिलेशन फंक्शन के जो आंसर्स होंगे वो सेट की फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर, ये सब चीज़ें, नई नई चीज़ें आएगी। तो आप पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप बना सकते हो सेट्स में। यू कैन मेक द सेट ऑफ द ऑल द बुक्स विच आर रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। यस, यू कैन मेक द सेट, आप बना सकते हैं, ठीक है। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स मैंने बताया आपको, आप नहीं बना सकते हैं। बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, नहीं बना सकते, डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो आपको टर्म कैसी चाहिए? अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, कौन सी? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बाद कि सेट्स को हम कितने तरह से लिख सकते हैं, कैसे बनाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक। Next is representation of a set. Representation सेट को हम कितने तरह से लिख सकते हैं? फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म। तो जो रोस्टर फॉर्म है इसको हम
टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म में जब एलिमेंट्स को लिखते हैं तो एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन द कर्ली ब्रेसेस। इस ब्रैकेट के अंदर हमको एलिमेंट की लिस्ट बन जाती है एंड द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। फॉर एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल इज ऑलवेज द वोवेल्स, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। तो दिस इज a set in the form of roster form. So when you write the elements separating by the sign comma and write in the braces, this collection is known as in the form of roster form. The elements are listed inside the bracket. इसको लिस्ट बना करके हमको कोमा लगा करके लिख देते हैं, यानी कि हमको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, तो हम इसको लिख पाएंगे। For example, when you want to write the collection of all the natural numbers which are less than 4, है ना, 4 से छोटे नेचुरल नंबर्स, तो सेट बनाया जा सकता है 1 2 3। तो 1 2 3 क्या हो गए, 3 एलिमेंट्स हो गए, और वो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। किससे छोटे हैं, 4 से छोटे। इस तरह का सेट बनाया जा सकता है, ठीक है, बन सकता है भाई, है ना। आप कोई सा भी लिख सकते हो, उसमें लिस्ट बना करके कोमा लगा के, कोमा लगाना है बीच में आपको, और सबके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो आप कह सकते हैं कि दिस इज रूल फॉर्म। इसमें जो एलिमेंट्स आप लिखेंगे, आपके पास में एलिमेंट्स की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती कई बार, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज टू लार्ज, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर टू लार्ज, बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे ऐसे लिख सकते हैं, या आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग ए सेट सी इज एक्स सच दैट एक्स is a citizen of India। ये साइन है सच दैट का, सच दैट, दिस साइन इज सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। एक्स ऐसा है कि इंडिया का सिटीजन है। अब आप इंडिया के सारे लोगों के नेम्स नहीं लिख सकते, तो हमने क्या कर दिया, एक सिंबलिक लैंग्वेज में लिख दिया एक्स ऐसा है कि, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स ऐसा है कि एक्स इंग्लिश अल्फाबेट का एक वोवेल है। तो आपको कई बार चेंज करना आना चाहिए। तो हम जितनी भी जो सेट बिल्डर फॉर्म है उनमें से हमको चेंज किस में कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब आपको ये भी सीखना है कि इनको आपस में कैसे इंटरचेंज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, रोस्टर टू सेट बिल्डर और सेट बिल्डर टू रोस्टर। तो ये भी देखेंगे हम, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको, एक्स सच दैट एक्स, एक्स ऐसा है कि एक्स ये है, ठीक है। और भी बना सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2n where n belongs to 1 2 3। x ऐसा है कि x 2n के इक्वल, और n कौन है, 1 2 3। n या तो 1 है या 2 है या 3 है। तो आप यहाँ 2 लिखोगे तो क्या 2 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 4, और 3 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 6। तो ये 2 4 6 को लिखने का दूसरा तरीका था, ठीक है। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, तो क्लियर हो जाएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, मैं दोनों को क्लियर करता हूँ।